Hello students. As we are doing the revision of lesson number 1, and in previous video we have discussed about the sense organs of human beings. That is about eyes, ears, nose, tongue and skin. And today we will discuss about the sense organs in different animals. And different animals use different organs to sense different things. Instead of these five sense organs that we have, different animals use different organs. जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो हम जो 5 सेंस ऑर्गन्स यूज करते हैं उनके अलावा कुछ और सेंस ऑर्गन्स से वो फील करते हैं, सेंस करते हैं. So let us now discuss about them. First of all, we will discuss about the insects. You can see here the picture of cockroach. Now, the insects like cockroach, housefly and butterfly have feelers on their body. What are feelers? These antenna-like structures जो आपने cockroaches के देखे होंगे, antenna-like structures, these are called feelers. And similarly, these types of feelers are also present in butterflies. You must have seen. Butterflies में भी देखे होंगे ऐसे feelers. They smell and taste with the help of these feelers. So जो ये cockroach and butterflies होते हैं ये इन feelers की मदद से smell भी करते हैं और taste भी करते हैं. But you know that in human beings we smell with our nose and taste with our tongue. But it is not so in cockroaches. So they smell and taste with the help of these feelers. And the housefly, जो अपने घरों में मक्खी होती है, that housefly tastes with its legs. जो उनकी legs होती है उससे वो taste करते हैं. कौन? Houseflies. Now insects like house cricket can hear through their legs. And it is interesting to know that जो house crickets होते हैं वो अपने leg से hear करते हैं, सुनते हैं. So it is very interesting that वो अपने leg से hear करते हैं. So these are about the insects. So that different insects different organs को sense करने में use करते हैं. Some have feelers, some smell or taste with these feelers. कुछ leg से taste करते हैं और कुछ leg से hear भी करते हैं. So these are about the sense organs of some insects. Now we will discuss about the water animals, how they sense. So water animals, जो सबसे common water animal है, that is a fish. So fish can feel the waves produced in water by other living animals. They feel these waves through their lateral line. You can see here, this is the lateral line. अब वाटर के अंदर कोई भी जब डिस्टरबेंस होती है, कोई भी वेव्स प्रोड्यूस होती है, सपोज कोई दूसरा एनिमल या कुछ भी चीज़ जब उसमें फ्लोट करेगा या गिरेगा या फिर तैरेगा तो उससे क्या होगी, वेव्स प्रोड्यूस होगी और उस वेव से वो वेव ये फिश जो है वो फील करती है. किससे? इसके बॉडी के ऊपर लेटरल लाइंस होती है, इन लेटरल लाइन से वो फील करती है उन वेव्स को. एंड दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट देयर प्रे और नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम. सो जब जो वेव्स जो ये फील करती हैं लेटरल लाइन से, इससे वो अपने प्रे मीन्स शिकार को ढूंढने में हेल्प करता है ये. और अगर कोई उनका एनिमी दुश्मन आ रहा है या उनको खतरा है किसी चीज से तो उसको भी वो इजीली डिटेक्ट कर लेती है, पहचान लेती है, ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज लेटरल लाइन. सो वाटर एनिमल्स भी वेव्स को फील करके अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं और अपने शिकार को भी ढूंढते हैं इन लेटरल लाइन से. नाउ नेक्स्ट animal is birds. The birds have sense organs like eyes, ears, etc., which enable them to see, feel, to smell, to hear, and to
taste. Beside these responses, birds also make different sounds inform other birds about different situations. आपने कई बार बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो कई बार अचानक से बहुत शोर करना शुरू कर देते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर साउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं. सो वो जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं या एकदम से सारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही एक जैसा ही अपना बिहेव होता है. उनका बिहेव अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस वो चेंज होता रहता है. और कोई टिपिकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनको कोई अपना एनिमी दिखता है. जब सपोज कोई स्नेक आता है या फिर कोई कैट आती है जिससे उनको खतरा होता है, उनके नेस्ट को खतरा होता है, उनके बेबीज को खतरा होता है, तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम पर्टिकुलर साउंड या टिपिकल साउंड, या बहुत सारे अगर वहां पर बर्ड्स है तो सारे एकदम से शोर मचाना शुरू कर देते हैं, सो दैट औरों को भी वो इन्फॉर्म हो जाए और उनकी कोई हेल्प के लिए आ सके या फिर वो उसको डरा सके जो उनके ऊपर जो नियर बाय आ रहा है उनका एनिमी. सो दे मेक अ पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे सी द. और समटाइम्स वो जब उनको खाना भी मिलता है तो भी वो अलग एक पर्टिकुलर टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि बाकी जो बर्ड्स हैं उसके साथ के उनको भी पता लग सके कि यहाँ पर खाना प्रेजेंट है और आप सारे यहाँ पर आ जाइए. सो दे व्हेन दे सी द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड दे मेक अ पर्टिकुलर साउंड. तो उनकी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट साउंड्स, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. खतरे पे अलग करते हैं, फूड मिलने पे अलग करते हैं. सो birds also group together and make sounds for setting out in search of food and to call all members for taking rest after day work. They fly in groups, often making interesting shapes in the sky. So birds generally groups में रहते हैं और वो sounds create करते हैं जब वो खाने के लिए तलाश में बाहर जाते हैं या जब वो रेस्ट करना होता है, तब भी वो पर्टिकुलर साउंड्स आपने मॉर्निंग में या इवनिंग में सुन सकते हैं. इनके साउंड्स जब वो रेस्ट करने के लिए अपने आते हैं या फिर जब मॉर्निंग में वो फूड की तलाश में जाते हैं या कभी कोई उनके आसपास एनिमी आ जाए उनके नेस्ट के पास, तो दे प्रोड्यूस सम पर्टिकुलर और टिपिकल साउंड्स. एंड जब वो ग्रुप्स में उड़ते हैं दे मेक इंटरेस्टिंग शेप्स इन द स्काई. और वो कई बार बहुत इंटरेस्टिंग शेप्स भी बनाते हैं जब वो पूरा एक ग्रुप में फ्लाई करते हैं. नाउ द रेप्टाइल्स. सम रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं. या सम रेप्टाइल्स लिव्स लाइक स्नेक्स हैव अ लॉन्ग टंग which helps them to feel and smell. You can see here the picture of the snake. It has a long tongue and this tongue help them to feel and smell. ये अपने टंग से ही स्मेल भी करते हैं और फील भी करते हैं. जैसे हमने इंसेक्ट्स में भी देखा था कि उनमें फीलर्स थे, कुछ अपने लेग से कर रहे थे कुछ. तो here in the case of snake they feel and smell with the help of their tongue. You can see here इसके दो parts हैं आगे टंग के 1 and 2. So snake senses the availability of food through its tongue only. तो इसको अपने टंग से पता लग जाता है कि मेरा फूड कहाँ पर है. नियर बाय अगर उसको कोई फूड होता है तो उसको अवेलेबिलिटी उसको उसकी स्मेल आ जाती है. आपने कभी देखा होगा टीवी में या उसमें स्नेक बार बार अपनी टंग को बाहर निकालता रहता है. वाई? टू फील द थिंग्स सराउंडिंग्स में जो उसके फूड की अवेलेबिलिटी है या नहीं है उसको फील करने के लिए वो टंग बार बार बाहर निकालता है. द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन. और अगर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है लैंड पे या फिर अर्थ पे तो उन सारे वाइब्रेशंस को वो कैसे फील करता है? विद देयर स्किन. तो अपने स्किन से वो अर्थ पे जो भी वाइब्रेशंस होती है उन वाइब्रेशंस को फील करता है और उससे उसको अपने एनिमी और डेंजर या अपने शिकार का भी पता चल जाता है. अब कोई भी अगर बड़ा एनिमल आएगा या कोई भी चीज़ आएगा तो उसके आने से
की वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होती है उसको फील कर लेता है अपने स्किन से, और वो डिटेक्ट कर लेता है किसी एनिमी डेंजर को। अगर कोई छोटी चीज है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है कि वो उसका शिकार है। तो इन दिस वे snakes can feel with the help of their tongue as well as with their skin. तो स्किन से वो फील करता है वाइब्रेशंस, और जो अपनी टंग होता है, टंग से वो स्मेल भी करता है और फील भी करता है। So next is your mammals. So mammals, all mammals have sense organs, but some mammals have a special power either to smell, to hear, or to see. So like, और कुछ मैमल्स में स्पेशल पावर होती है, किसी में स्मेल करने की, किसी को हियर करने की, किसी को देखने की स्पेशल पावर्स होती है। सो डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। यू ऑल नो दैट जो डॉग्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनमें स्मेल करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। उनके जो नोज होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। दैट्स वाई वो सूंघ के ही किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं। और जो हमारे पुलिस है, पुलिस भी जो सर्च ऑपरेशंस में इन डॉग्स को यूज़ करती है, बिकॉज वो जिस स्मेल को एक बार सूंघ लेते हैं तो उसको पहचान के वो कहीं भी उसको दोबारा ढूंढ सकते हैं। सो देयर सेंस ऑफ स्मेल इज वेरी डेवलप्ड। Similarly, bats have a special power to hear high-pitched sounds. High-pitched sounds means हम एक फ्रिक्वेंसी होती है साउंड्स की भी अलग अलग, और हमारी कुछ कैपेसिटी होती है जिसमें हम साउंड्स को सुन सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही हम लोग साउंड्स को सुन सकते हैं। उस फ्रिक्वेंसी से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग साउंड्स नहीं सुन सकते, और उस फ्रिक्वेंसी से अगर कम हो जाए, इट्स 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच की हम साउंड्स को सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड हो जाए तो हम लोग उसको नहीं सुन सकते, और साउंड्स जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसे भी हम सुन नहीं सकते। उसे हम बोलते हैं हाई पिच्ड साउंड्स। बट जो बैट्स होते हैं वो हाई पिच साउंड्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं। So they have a special power to hear high-pitched sounds. Due to this ability, bats can detect their prey easily even in dark. तो अंधेरे में जब कुछ नजर नहीं आता है तब भी जो बैट होते हैं वो अपने शिकार को इजीली ढूंढ लेते हैं। कैसे? ये हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो वापस आती है टकरा के तो उसको सुन के वो अपने शिकार को इजीली ढूंढ लेते हैं। दैट्स वाई द बैट हंट एट नाइट। और इसीलिए वो रात को हंट करते हैं, बिकॉज दिन में तो बहुत सारे एनिमल्स और अदर थिंग्स उड़ते रहते हैं या चलते रहते हैं, बट रात को लिमिटेड होते हैं और दे कैन इजीली फाइंड आउट द प्रे। उनका शिकार इजीली ढूंढ लेते हैं। दे डिटेक्ट दियर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच्ड साउंड नोन एज अल्ट्रासोनिक। और वो अपने प्रे को कैसे ढूंढते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाई पिच साउंड्स। और हाई पिच साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स वो होती है जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, हम उसको सुन नहीं सकते, और ये साउंड्स बैट सुन सकते हैं। इसकी वजह से वो अपने शिकार को इजीली डिटेक्ट करते हैं और ढूंढ लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ सम animals. Now this chapter is completed. Now let us discuss the worksheet of this lesson. So here is the fill-ups. A windpipe is connects nose to the dash in mammals. तो जो windpipe होता है वो mammals में किस चीज से कनेक्ट होता है? windpipe nose को किससे कनेक्ट करता है? लंग्स से कनेक्ट करता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ब्रीदिंग सिस्टम। नोज इज कनेक्टेड टू लंग्स थ्रू विंड पाइप। नोज से हम ब्रीद इन करते हैं, देन जो ऑक्सीजन होता है वो
विंड पाइप से पास होके कहाँ पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है. सो नोज, विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू द लंग्स. ऑफ द टू जॉज ओनली द डैश जॉ मूव्स. सो हमने किया है पूरे स्कल में हमारा एक ही पार्ट मूव करता है, दैट इज लोअर जॉ. सो टू जॉज में से कौन सा जॉ मूव करता है, ओनली द लोअर जॉ. द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. फिश कैन फील वेव्स, ये तो अभी हमने आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया था. फिश कैन फील वेव्स विद द हेल्प ऑफ दियर लेटरल लाइन. लेटरल लाइन से वो फील करती है वेव्स को. अ स्नेक यूजेज इट्स डैश टू टच एंड स्मेल ऑब्जेक्ट्स. तो ये भी हमने आज ही डिस्कस किया है. स्नेक अपने टंग से स्मेल और फील करता है. आइज इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द. तो जो आइज होती है वो ब्रेन से किससे कनेक्ट होती है, बाय ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व से हमारी जो आइज होती है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है. नेक्स्ट इज योर मैचअप्स. मैचअप्स में आपको डिफरेंट बोन्स दी हुई है एंड यू हैव टू मैच विद द टाइप ऑफ जॉइंट इट इज. तो हमारे जो बोन्स हैं, जैसे एल्बो जॉइंट है हमारा, दो बोन्स एल्बो पे मिलती है, तो किस टाइप का जॉइंट का एग्जाम्पल है वो, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट. रिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट. देन हिप is an example of ball and socket joint. Then femur is the longest bone of our body, so it is the longest bone. And skull is made up of 8 flat bones. So this is the matchup. And then the MCQs, multiple choice questions. The joint in the shoulder is an example of. So shoulder में किस टाइप के joint का example है, that is hinge joint, pivot joint, and ball and socket joint, and gliding joint. So it is an example of ball and socket joint. The framework of bones that protects our heart and lungs is known as, very easy, spinal cord, skull, rib cage, and pivot. So you all know that heart and lungs are present inside the rib cage. So rib cage के अंदर होते हैं. So it protects the heart and lungs. Light enters the eyes through. So in previous video I have explained you that हमारे eyes में एक dark black color का spot होता है, that is called pupil. और उस pupil से light enter होती है हमारी eyes में. Next, the part of the ear which helps in maintaining balance of our body. So ears में हमने पढ़ा था, there are 3 parts of ears: outer ear, middle ear, and inner ear. So the inner ear help us to hear as well as to maintain balance of our body. So the answer is inner ear. So in next video we will discuss the question answers. Thank you.